and you will see the color is again changing to orange. धीरे धीरे orange हो जाएगा. Means potassium chromate is converting to potassium dichromate. So बहुत अच्छी छोटी आप एक्टिविटीज करके अपनी रिएक्शंस को रख सकते हैं, बिकॉज वंस यू परफॉर्म सम रिएक्शंस आपको हमेशा याद रहती हैं. सो बहुत सारी रिएक्शंस हम अभी तक करते रहे हैं, बट नाउ इट्स टर्न फॉर सम क्वेश्चंस. टाइम इज ऑल्सो रनिंग. सो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं वन बाय वन करके. मैंने कोशिश की है कि जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं चैप्टर से मैं आपको आंसर करूं, बट आई हैव सम क्वेश्चंस. Okay, so the very first question is from Ashok. He is from Rourkela, Odisha. And Ashok is asking why cerium plus 3 can be easily oxidized to cerium plus 4. Ashok, I think you have got your answer. आपको मिल गया होगा आपका आंसर, क्योंकि जो सीरियम है, सीरियम is 4F15D16S2. So if it is in the cerium within +4 state, it will be 4F0. ठीक है, and it attains the configuration of xenon. So xenon का configuration attain करता है +3, and that is why cerium 3 अगर है आपके पास +3, it will be 4F15D06S2 0. तो F पे एक ही तो रह जाएगा. Now it is quite easy to remove F, एक इलेक्ट्रॉन into one electron, and it comes to the stable state cerium plus 4. Okay, now our next question. I have got next question from Manish. He is from Jaipur, Rajasthan, and he is asking why zirconium and hafnium have almost identical radii. So Manish, it is because of lanthanide contraction. It is a consequence of lanthanide contraction. I discussed also that zirconium and hafnium because of lanthanide contraction, क्योंकि पीरियड में आप देखते हैं जो एटॉमिक साइज है, इट इज डिक्रीजिंग एंड ग्रुप में इट इज इंक्रीजिंग. सो बिकॉज ऑफ क्यूमुलेटिव इफेक्ट दे हैव गॉट सिमिलर साइज, और उसकी वजह से नेचर में साथ में पाए जाते हैं. उनका सेपरेशन भी बहुत मुश्किल होता है. ठीक है. द थर्ड क्वेश्चन आई हैव गॉट फ्रॉम रेबेका. ही इज फ्रॉम Azwal, Mizoram. So the questions are coming from different parts of the country. The question is, actinoid series exhibits a large number of oxidation states than corresponding members of lanthanide series. So actinoids की oxidation state ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि 4F are protected. 4F अंदर की तरफ होते हैं और बाहर की तरफ जो ओवरलाइंग है 5P है, 5D है, 6S है, ये सभी क्या है, आउटर एनवायरनमेंट में एक्सपोज्ड रहते हैं. सो बिकॉज 4F इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ इनवर्ड dipole of electrons. So outer electrons they move 1, 2, 3, 4, and that is why they show more oxidation states. It is also because of poor penetration effect. Next question is from Vijay Lakshmi, Cuttack, Odisha. ये पूछती हैं कि why F log elements are placed at the bottom of periodic table. उनको bottom में क्यों छोड़ दिया है? And why not they have been given some different positions? So my dear, how can we give them a different position? Because the position is assigned on the basis of the entrance of electron to the last orbital. So when you see, अगर आप देखें तो S have been, these are S plus because last इससे जा रहा है, ये P हो गया, last इससे जा रहा है. D की प्रॉपर्टी S and P के बिटवीन है, तो D को बीच में रख दिया. ठीक है. अब यहाँ पर F के मेंबर्स आ जाते हैं, so you can't keep here because their properties are altogether different. So that is why they thought कि चलो इनको बॉटम में रख देते हैं because the last electron is entering into F. So it is a very good question, I think, कि why उनके साथ ऐसा अन्याय क्यों, उनको बॉटम में क्यों रख दिया. I think you have got your answer. The next question is from Anil, Jamshedpur, Jharkhand. ये पूछते हैं कि जब पोटेशियम मैंगनेट turns purple when CO2 is passed through it. Very good. अभी मैंने डिस्कस किया था. पोटेशियम मैंगनेट K2MnO4 is converted to, ये कह रहे हैं ब्राउन हो जाता when CO2 is passed. So see, CO2 is acidic in nature, and why it is acidic in nature? When CO2 is goes into water, लोग कहते हैं ना कि कोल्ड ड्रिंक्स मत पिया करो, ये एसिडिक होती है, बिकॉज उसमें CO2 होती है.
एंड CO2 इन द डिजॉल्व्ड स्टेट कैसे रहेगी गैस, CO2 डिजॉल्व हो जाती है वाटर में एंड इट फॉर्म्स अ वीक एसिड कार्बोनिक एसिड H2CO3. This is an acid, carbonic acid. And if you are passing CO2 in this solution, this carbonic acid must be produced, providing some H ion. कुछ H ion ये provide कर रहा होगा. And because of these H ions, this manganate is converted to permanganate, right? And permanganate is brown purple solid. बहुत अच्छा क्वेश्चन था. आप इसको रिएक्शन के थ्रू भी देख सकते हैं. Next question, I think I have 2-3 more questions. Then I'll finish. He is asking Sir Satish from Chennai, Tamil Nadu, that why E naught of copper is positive. Why E naught of copper is positive. बाकी सबका तो 3D सीरीज में नेगेटिव होता है, बट कॉपर का ही पॉजिटिव क्यों है? तो कॉपर का पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि द E naught जो है इट इज सम ऑफ डेल्टा H सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस डेल्टा H हाइड्रेशन. ठीक है. सो समथिंग विल बी स्टेबल इफ E naught इज लेस है, कम होगा. तो डेल्टा H हाइड्रेशन इज निगेटिव, इट इज पॉजिटिव, इट इज पॉजिटिव. ये कम कैसे होगा अगर ये ज़्यादा निगेटिव हो जाए. डेल्टा H हाइड्रेशन अगर ज़्यादा निगेटिव हो जाए E naught डेफिनेटली कम हो जाएगा. बट इन केस ऑफ कॉपर रिमार्केबल डिफरेंस इज दैट इट इज प्लस 0.34 वोल्ट. बिकॉज आप क्या आंसर दे सकते हैं, इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत कम है. ठीक है. एंड इट डज नॉट कंपेंसेट विद दीज एनर्जीज. So because of lesser heat of hydration as compared to other members, it has got positive E naught added. हमारे लिए एक तरीके से अच्छा भी है. कॉपर की इसी प्रॉपर्टी की वजह से we have got so many electrical appliances. Next question is from झांसी. अजीत पूछते हैं झांसी से, यूपी से. यूरोपियम +2 is more stable than सीरियम +2. तो यूरोपियम +2 जो है आपका it will be 4F7 and cerium +2 it will be 4F1 5D16L3. कॉन्फ़िगरेशन पे जाइए, आंसर दीजिए. It will be 4F7 5D0 6D0. So F7 extra stable या it is more stable. ठीक है. इनके आंसर जितने भी आपके ऑक्सीडेशन स्टेट के हो, सीधा यू गो फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड फाइंड वेदर इट इज F0 F7 या D0 D5 D10. तो यू कैन इजीली आंसर. एंड फिर एक क्वेश्चन है प्रीति फ्रॉम नैनीताल उत्तराखंड, एंड शी इज आस्किंग विच ट्राइवेलेंट आयन हैज मैक्सिमम साइज इन लैंथेनाइट सीरीज. सी लैंथेनम इज नॉट अ मेंबर बट इट इज द प्रोसीडिंग एलिमेंट. तो इसका आंसर हम दे सकते हैं लैंथेनम +3. लैंथेनाइट सीरीज के साथ ही इसको पढ़ा जाता है. इट हैज गॉट हाईएस्ट साइज, बिगेस्ट साइज. और एक आखिरी क्वेश्चन हमारे पास है फ्रॉम आशीष. ही इज फ्रॉम गांधीनगर गुजरात, एंड ही इज आस्किंग विच एक्टिनॉइड एलिमेंट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर रॉड्स ऑफ एटॉमिक रिएक्टर्स. एटॉमिक रिएक्टर्स के बारे में आप जानते होंगे, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है. वहाँ पर हम कुछ रॉड्स यूज करते हैं. द रॉड शुड बी रेडियो एक्टिव इन नेचर. और ये जो आपका आंसर है इट इज थोरियम. ठीक है. थोरियम के रॉड्स हम यूज करते हैं, यूरेनियम की नहीं करते. बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा. एंड हेयर